सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को निर्णायक कार्रवाई करने की जरूरत। भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, पुलवामा हमले के गुनाहगार जैश आतंकियों पर कार्रवाई नहीं करने पर भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर किए हमले। आतंकवाद पर अमेरिका की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। कहा, अपनी जमीन पर आतंकी संगठनों पर ठोस कार्रवाई करे पाकिस्तान। इस्लामाबाद से तनाव नहीं बढ़ाने को भी कहा। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी गोलीबारी का भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। कार्रवाई में 5 पाकिस्तानी चौकियां तबाह। कई पाकिस्तानी सैनिकों के हताहत होने की खबर। शोपियां मुठभेड़ में जैश के 2 आतंकी ढेर। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शुरू होगी दूसरी शिखर वार्ता। ऐतिहासिक सिंगापुर सम्मेलन के 8 महीने बाद वियतनाम के हनोई में मिलेंगे दोनों नेता। कोरियाई प्रायद्वीप को पूरी तरह परमाणु हथियारों से मुक्त करने पर होगी चर्चा। और क्रिकेट विश्व कप को लेकर दुबई में आईसीसी की अहम बैठक आज। भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर होगी चर्चा। विश्व कप के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बीसीसीआई को आश्वस्त करेगा आईसीसी। आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को निर्णायक कार्रवाई करने की जरूरत है। भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि पुलवामा हमले के गुनाहगार जैश आतंकियों पर कार्रवाई के लिए पाकिस्तान को बार बार कहा गया, लेकिन पाकिस्तान की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले किए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पुलवामा आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की जमीन में पल रहे आतंकी संगठन जैश का मुद्दा भी उठाया और विश्व समुदाय से आतंकी संगठनों पर ठोस कार्रवाई करने को कहा। Russia, India and China are countries that carry important voices in international politics and have the potential to significantly influence world events. Excellencies, together we can play a constructive role in addressing pressing issues of common concern and challenges facing our world. Terrorism tops the list of the existential threats that the world faces today. We are aware of the recent dastardly terrorist attack on our security forces in Pulwama, Jammu and Kashmir, perpetrated by Jaish-e-Mohammed, a Pakistan-based and supported terrorist organization proscribed by the United Nations and other countries. We lost more than 40 personnel from our Central Reserve Police Force, while several others are injured seriously. Such dastardly terrorist attacks are a grim reminder for the need for all the countries to show zero tolerance to terrorism and take decisive actions against it. Following the Pulwama terrorist attack, instead of taking seriously the calls by international community to act against Jaish-e-Mohammed and other terror groups based in Pakistan, Pakistan denied any knowledge of the attack and outrightly dismissed claims by Jaish-e-Mohammed. In the light of continuing refusal of Pakistan to acknowledge and act against terror groups on its territory, and based on credible information that Jaish-e-Mohammed was planning other attacks in its various parts of India, Government of India decided to take preemptive action. The largest and the target was selected in order to avoid civilian casualties. Excellencies, this was not a military operation. No military installations were targeted. The limited objective of the preemptive strike was to act decisively against the terrorist infrastructure of Jaish-e-Mohammed in order to preempt another terror attack in India. India does not wish to see further escalation of the situation. India will continue to act with responsibility and restraint. Excellencies, in our discussions today, I look forward to having productive exchanges with you on other important issues such as climate change, reformed multilateralism, RIC cooperation under the framework of international organizations, and international hotspot issues. I believe the Wuchen meeting of RIC will positively contribute to the ongoing global discussions
on a host of issues. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के अलावा सुषमा स्वराज ने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने पुलवामा आतंकी हमले की बात को जोर शोर से उठाया। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा में जवानों पर भीषण हमला किया गया। Excellency, this is our first meeting in this new year, and is therefore an opportune time for us to take stock of our bilateral relations and look ahead for cooperation agenda for this year. India-China relations, as you said, is an important relationship for both of our countries. We have made substantial progress in our relations since the informal summit between Prime Minister Modi and President Xi Jinping in Wuhan in April 2018. Excellency, it is important to both sides to ensure thorough and effective implementation of the guidance given by our leaders. Both sides have made good efforts in this regard, and we should sustain this effort. Excellency, particularly the decision taken by our leaders to maintain strategic communication between them provides an important foundation for the development of our bilateral relations. This channel of strategic communication between the two of us and between the senior officials of the two sides should always remain open. अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वो अपनी जमीन पर आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। अमेरिका ने पाकिस्तान से इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अपील की है। साथ ही पाकिस्तान से कहा है कि वो किसी भी तरह की तनाव बढ़ाने की कार्रवाई से बचें। अमेरिका ने दोनों देशों से सीधी बातचीत करने और मिलिट्री कार्रवाई से बचने को कहा है। और हवाई हमले के बाद पाकिस्तान को अमेरिका समेत प्रमुख देशों की कोई मदद नहीं मिली है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने के लिए कहा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता का कहना है कि महासचिव स्थिति पर बहुत करीबी से नजर बनाए हुए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने भारत और पाकिस्तान से अधिकतम संयम बरतने की अपील की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थिति और न बिगड़े। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत की कार्रवाई का समर्थन किया है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। फ्रांस ने भी कहा है कि भारत के पास सीमा पार आतंक से अपनी सुरक्षा करने का वैध अधिकार है। वहीं बीजिंग में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही दक्षिण एशिया के अहम देश हैं। दोनों देशों के हित और दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए दोनों सरकारों के बीच अच्छे संबंध और सहयोग होने चाहिए। 印度和巴基斯坦都是南亚地区的重要国家，那么双方保持一个良好的关系、良好的沟通，它是有利于南亚地区的和平稳定，从根本上也是符合印度和巴基斯坦双方的利益的。我们希望印巴双方都能保持克制，能够采取有助于稳定地区局势、有助于改善相互关系的举动，而不是相反。 और हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे। अखिलेश, एक बार फिर अब भारत की कार्रवाई के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है और जो अभी अपडेट मिल रहा है, अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वो तुरंत आतंकी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई करे। अखिलेश, कितना आइसोलेट दिख रहा है पाकिस्तान इस वक्त? निश्चित तौर पे अमेरिका ने ये तो कहा ही है कि आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करे। इसके हाँ, निश्चित तौर पे अमेरिका के विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि किसी भी कीमत पे एस्केलेट नहीं होना चाहिए सिचुएशन को, मतलब किसी भी तरीके से युद्ध की स्थिति नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान को उन्होंने साफ साफ कहा है। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा कि यहाँ तक कि जो उनके मित्र देश हैं, चीन, जिसके बारे में वो समझते हैं कि काफ़ी अच्छे मित्र हैं, चीन ने भी किसी तरह से पाकिस्तान का समर्थन करने से इनकार कर दिया। चीन ने भी कहा कि दोनों को रेस्ट्रेंट बरतना चाहिए। फ्रांस हो या अभी जो स्थिति है पाकिस्तान की, वो यह
है कि पूरे दुनिया में पाकिस्तान के बारे में यह समझ लिया गया है कि आतंकवादियों का शरणगाह बना हुआ है। और पुलवामा हमले के बाद भारत ने जिस तरीके से राजनयिक तौर पे पूरी दुनिया में ताकतवर देशों, छोटे देशों, सभी देशों के साथ संपर्क करके उन्हें इस घटना की जानकारी दी, किस तरीके से पाकिस्तान में स्थित जैसे मोहम्मद के ठिकानों से कार्रवाई की जा रही थी। और उसके बाद सभी देशों से एक तरीके से कंडेमनेशन आने के बाद भारत ने जो यह कार्रवाई की है, उसके बाद भी किसी देश की यह स्थिति नहीं बन पा रही है कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान का समर्थन करे। और इसीलिए एक के बाद आप एक देख रहे हैं कि भारत के पक्ष में और पाकिस्तान के विरोध में बयान आ रहे हैं। ब्रिटेन के आप देखेंगे बयान, तो ब्रिटेन का बयान काफ़ी स्पष्ट है। ब्रिटेन ने कहा है कि पाकिस्तान बंद करे और उसके अलावा यह भी कहा है कि अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हम आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाएंगे। तो एक ऐसी स्थिति है पाकिस्तान की, वो पूरी तरह अलग थलग पड़ा हुआ है। अब एक RIC में जो एक सबसे स्थिति बनती है कि चीन के साथ जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बात हुई और उसके बाद अभी भी और बातें होंगी, तो उसमें साफ तौर पे जो मुझे लग रहा है कि चीन भी अभी पूरी तरह अलग थलग पड़ा हुआ है, पाकिस्तान का समर्थन करने की स्थिति में नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वे यही अपील कर पा रहे हैं कि दोनों पक्ष जो है रेस्ट्रेन बढ़ते हैं। तो ऐसे में अखिलेश, पाकिस्तान का समर्थन करने की स्थिति में चीन नहीं है, ऐसे में आगे क्या समझा जाए? क्या भारत का समर्थन जारी रखने का जो ऐलान किया गया है चीन की तरफ से, उससे क्या अब ये उम्मीद की जा सकती है कि जैश सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित करने के मुद्दे पर चीन के रुख में बदलाव देखने को मिले? क्या संभावना है? ये बहुत ही कहें कि लाख टके का सवाल है प्रीति, और अभी की स्थिति में बिल्कुल ऐसा विश्वास करना सही नहीं होगा, क्योंकि चीन अपनी एक रियल पॉलिटिक्स है, उस रियल पॉलिटिक्स के अनुसार चीन काम कर रहा है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति बनी थी, कल ही मैं विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से बात कर रहा था, जो FATF में जो स्थिति बनी, FATF में जिस तरह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने पर चीन ने कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं की, किसी भी तरीके से पाकिस्तान के बचाव में नहीं आया। तो उसके बाद यह तो है कि चीन खुद भी अपने आप को इस मामले में बहुत ही अलग थलग महसूस कर रहा है कि लगातार पूरी दुनिया अगर आतंकवाद का कंडेम कर रही है, पाकिस्तान के पर उंगलियां उठ रही हैं, तो वैसी स्थिति में चीन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल में भी जिस तरह से पिछले दिनों पुलवामा हमले की निंदा की गई, चीन ने कोशिश की, लेकिन फिर चीन चुपचाप बैठना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में चीन भी खुद को बहुत ही दबाव के अंदर महसूस कर रहा है। लेकिन अब अगले कुछ सप्ताहों में होगी सिक्योरिटी काउंसिल में, और हो सकता है कि अगले सप्ताह फ्रांस खुद एक प्रस्ताव लेकर आने वाला है। और ऐसी स्थिति में देखना यह होगा कि चीन किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बात कर रही थी, और जो एक पूरा बॉडी लैंग्वेज था, उस बॉडी लैंग्वेज में वार्मथ तो दिख रहा था। लेकिन अब चीन की रणनीति बिल्कुल कई बार ऐसी होती है कि जो सामने दिखता है वो धरातल पे उतरता नहीं है। तो यह बहुत ही स्थिति ऐसी है कि चीन अपने आप को दबाव में महसूस कर रहा है, लेकिन किस तरीके से इस स्थिति में चीन अपने को पेश करेगा यह देखना होगा। प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए और ये तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका। जैश ए मोहम्मद के कैंप को तहस नहस करने के साथ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बारे में बात की है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया, तुर्की और आसियान समेत कई देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों को वायुसेना की कार्रवाई की जानकारी दी। साथ ही पड़ोसी देशों श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, भूटान को भी इसकी जानकारी दी है। विदेश मंत्री ने कई देशों के विदेश मंत्रियों से इस बारे में बात की। उन्होंने साफ किया कि ये कार्रवाई पुख्ता खुफिया जानकारी मिलने, आतंकियों और उनके ठिकानों को बनाने के लिए थी। इसमें लोगों और पाकिस्तान सेना के ठिकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। We are very satisfied that the Indian government and the Ministry of External Affairs has had such a rapid response in informing the heads of missions about what happened. This is something very good because our capitals are expecting to hear from us. Our capitals are expecting to receive our reports. And the information is that they acted responsibly, that they did not affect any civilian population or any Pakistani military installation, that it was a very directed attack due to credible intelligence received. We are following very closely the current developments between India and Pakistan. We remain in contact with both countries,
And what we believe is essential is that all exercise maximum restraint and avoid further escalation of tensions. वहीं जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी गोलीबारी का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की 5 चौकियां तबाह कर दी हैं। इस कार्रवाई में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। सेना के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की तकरीबन 5 चौकियों को गंभीर नुकसान पहुंचा है और राजौरी और पुंछ जिलों में नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना के कई जवान हताहत हुए हैं। मंगलवार शाम पाकिस्तानी सेना ने हताशा के कारण नियंत्रण रेखा पर भारी हथियारों से गोलीबारी करके बिना उकसावे वाला संघर्ष विराम उल्लंघन किया था। दोनों तरफ से गोलीबारी में भारतीय सेना के 5 सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं। इनमें से 2 को इलाज के लिए सेना के अस्पताल ले जाया गया है। उनकी हालत स्थिर है। शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 जैश आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बलों को मेमांदर इलाके में एक रिहायशी मकान में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। दोनों ओर से फायरिंग की गई, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। इसी दौरान आतंकियों ने गोलियां चला दी, जिसके बाद से मुठभेड़ शुरू हो गई। शोपियां में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। इस ऑपरेशन को सेना, सीआरपीएफ और एसओजी कर रही हैं। पुलवामा हमले का बदला लेते हुए भारतीय वायुसेना की कार्रवाई में जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। भारत की इस कार्रवाई में निशाने पर थे जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर और उनके ठिकाने, जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। पुख्ता खुफिया जानकारी मिली कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी भारत के कई हिस्सों में आत्मघाती आतंकी हमला करने की साजिश में जुटे थे। इस हमले में जैश के जो टॉप आतंकी निशाने पर थे, इनमें मौलाना अम्मार, जो कश्मीर में आतंकी वारदातों से जुड़ा रहा है। इसके अलावा मौलाना तलहा सैफ, मुफ्ती अजहर खान, इब्राहिम अजहर, मसूद अजहर का भाई और 1999 में कंधार विमान अपहरण में शामिल था, जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है। माना जा रहा है कि वायुसेना की कार्रवाई में जैश के कई टॉप कमांडर, ट्रेनर और आतंकवादी मारे गए हैं। वायुसेना ने अपनी कार्रवाई में बालाकोट में उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जहां बाकायदा कैंप बनाकर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। साथ ही आतंकियों के हथियारों के जखीरों को भी तबाह किया गया, जहां आतंक फैलाने के लिए राइफल, ग्रेनेड, विस्फोटक, गोला बारूद जमा किया गया था। और वायुसेना की कार्रवाई के बाद सभी दलों ने एक सुर में इसका समर्थन किया। सरकार ने सर्वदलीय बैठक करके वायुसेना की कार्रवाई के बारे में सभी दलों को जानकारी दी। बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरों दलों के नेताओं को अभियान का ब्यौरा दिया। इस मौके पर सरकार ने साफ किया कि यह मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, एक एंटी टेरर ऑपरेशन था। सभी दलों ने वायुसेना को कामयाब अभियान के लिए बधाई दी। मुझे खुशी है कि सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर में पहले भारतीय वायुसेना को बधाई दी, फिर सरकार द्वारा किए गए किसी भी आतंक विरोधी कार्रवाई के लिए हमेशा समर्थन देने का आश्वासन दिलाया और पक्ष और विपक्ष का भेद किए बिना एकजुटता का प्रदर्शन किया। टेररिस्ट कैंप जो पाकिस्तान के द्वारा मैं था उसको ध्वस्त किया, जहां टेररिस्ट ट्रेनिंग देते थे और जहां से कैंप को खत्म करने के लिए जो भी प्रयास किया और जो भी एक्शन लिया उसकी हमने सराहना की है अपने एयरफोर्स के साथ और हमारा पूरा बराबर समर्थन रहेगा अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत एक शांति प्रिय देश है और अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना माहौल में रहना चाहता है। दिल्ली में माय होम इंडिया की 13वीं सालगिरह के मौके पर हुए समारोह में उन्होंने कहा कि भारत अपने घरेलू मामलों में किसी तरह की दखलंदाजी नहीं चाहता और अगर कोई जबरदस्ती इसमें घुसपैठ करेगा तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में सहमति बनाने की सलाह दी। We are capable of fighting our own battle. We don't want anybody to interfere in our internal affairs. We don't want support of any country for that matter. We are capable.
Our armed forces, they have shown their capacity. Hats off to Indian armed forces. We feel proud of them. But we want the international community to realize the danger of terror that is causing to humanity, affecting the progress of the world, affecting the peace of the world. भारतीय वायुसेना की ओर से पाकिस्तानी सीमा में की गई कार्रवाई का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वागत किया है। सर कार्यवाह सुरेश जोशी की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि वायुसेना की कार्रवाई देश को एकजुट करने वाली है। संघ के बयान में कहा गया है कि पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के द्वारा किए गए आतंकी हमले से सारा देश क्रुद्ध और क्षुब्ध हुआ था। भारतीय वायुसेना द्वारा जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तान स्थित ठिकानों को अचूक लक्ष्य बनाकर उन्हें ध्वस्त किया गया। ये करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को कृति में लाने का एक कार्य है। हम भारतीय वायुसेना और भारत सरकार का अभिनंदन करते हैं। पाकिस्तानी सेना और नागरिकों को क्षति पहुंचाए बिना किया गया ये कार्य भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी नागपुर में कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पुलवामा में शहीद हुए जवानों का 13वीं श्राद्ध सही तरीके से पूरा हुआ है। उधर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने कल कश्मीर घाटी में आतंकवादियों को आर्थिक मदद मुहैया कराने के मामले में कार्रवाई की। एनआईए ने श्रीनगर में अलगाववादियों के आवासों पर छापेमारी की। इस दौरान एनआईए के साथ स्थानीय पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मियों ने कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों के मुताबिक मीरवाइज उमर फारूक, सैयद अली शाह गिलानी के बेटे नईम गिलानी, यासिन मलिक, शबीर शाह, अशरफ सहराई और जफर भट्ट के आवासों पर छापे मारे गए। ये मामला जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों को पाकिस्तान की ओर से हवाला के जरिए कथित तौर पर धन मुहैया कराने से जुड़ा है। वहीं विपक्षी दलों की आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। विभिन्न विपक्षी दलों के नेता लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय करने के उद्देश्य से आज बैठक करेंगे। हालांकि इस बैठक में से वाम दल दूर रह सकते हैं। वहीं चुनाव आयोग की टीम आज से 3 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा रही है, जहां वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। चुनाव आयोग ने कहा है कि पुलवामा हमले और वायुसेना की कार्रवाई के बाद चुनाव आयोग देश के घटनाक्रम पर नजर रख रहा है। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव आयोग संविधान द्वारा दिए गए आदेश का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। और कुछ और अहम खबरों में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 और सरकारी बैंकों को कमजोर बैंक निगरानी सूची से बाहर करते हुए कर्ज बांटने पर लगी रोक को खत्म कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने इलाहाबाद बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया है। प्राइवेट सेक्टर धनलक्ष्मी बैंक को भी पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाला गया है। इससे पहले 31 जनवरी को बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पीसीए फ्रेमवर्क से मुक्त कर दिया गया था। आईसीसी की दुबई में आज तिमाही बैठक होने जा रही है। इस बैठक में भारत और पाकिस्तान के विश्व कप में खेलने पर चर्चा हो सकती है। भविष्य की वैश्विक प्रतियोगिताओं के लिए कर छूट, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के प्रसारण अधिकार और निजी टी20 लीग में प्रतिनिधित्व सीमित करने जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। आईसीसी की कई बैठकों की शुरुआत आईसीसी मुख्य कार्यकारियों की समिति की बैठक के साथ होगी। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व बीसीसीआई सीईओ राहुल जौहरी करेंगे। इसका अंत बोर्ड बैठक के साथ होगा, जिसमें भारत की ओर से कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी हिस्सा लेंगे। जिन मुख्य मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें कर छूट, गतिरोध, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप से जुड़े प्रसारण के मुद्दे। एक मुख्य मुद्दा आईसीसी द्वारा भारत में 2021 में टी20 विश्व कप और 2023 विश्व कप जैसी भविष्य की वैश्विक प्रतियोगिताओं के लिए कर छूट की मांग है। मौजूदा नियमों को देखते हुए इसकी संभावना बेहद कम है कि आईसीसी को किसी तरह की छूट मिले और इस गतिरोध के जारी रहने की संभावना है। वहीं टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी टी20 मैच आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच मुकाबला शाम 7 बजे से खेला जाएगा। टीम इंडिया जब आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में उतरेगी तो उसके सामने सीरीज बचाने की चुनौती होगी। पहले मैच में टीम इंडिया को 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे है।
और बात खास शख्सियत की। भारत रत्न और मशहूर समाज सेवक नानाजी देशमुख की आज पुण्यतिथि है। नानाजी देशमुख का जन्म महाराष्ट्र के परभणी जिले में एक छोटे से गांव कदोली में 11 अक्टूबर 1916 को हुआ था। नानाजी देशमुख शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण लोगों के बीच स्वावलंबन के कार्यों के लिए सदैव याद किए जाते हैं। इसी साल उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। वहीं उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। चंद्रशेखर आजाद की आज पुण्यतिथि है। वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। 17 साल की उम्र में चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सम्मिलित हो गए थे। सैंडर्स वध, सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह द्वारा बम फेंकना, वायसराय को ट्रेन बम से उड़ाने की चेष्टा, सबके नेता वही थे। इससे पूर्व उन्होंने प्रसिद्ध काकोरी कांड में सक्रिय भाग लिया और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष और स्वतंत्रता सेनानी गणेश वासुदेव मावलंकर की आज पुण्यतिथि है। उनका जन्म 27 नवंबर 1888 को गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। मावलंकर को पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा के जनक की उपाधि से सम्मानित किया था। 27 फरवरी 1956 को अहमदाबाद में उनका निधन हुआ था और इसी के साथ अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल भी समाप्त हुआ था। फिलहाल एक अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर। वियतनाम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन आज मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच पहली शिखर बैठक जून में सिंगापुर में हुई थी, जो उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण कार्यक्रम पर बिना किसी ठोस समझौते के समाप्त हुई थी। दोनों नेताओं के बीच हनोई में होने वाली इस बैठक से इस बार काफी उम्मीदें की जा रही हैं। इस दौरान कोरियाई प्रायद्वीप को पूरी तरह परमाणु हथियारों से मुक्त करने पर चर्चा होगी। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद आगे विशेष में देखिए जैश को करारा जवाब। नमस्कार।